Today is the 45th session of Yog Vashisht. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. We had done 5 principles of Yog Vashisht, 6 principles of Yog Vashisht, and today we are doing 7, 8, and 9, 3 more principles. The first principle that we will take is that the world is imagination. The world is imagination. We find it pretty hard to fall in line with this line of thinking. है ना? It seems so real to us, no? So how can we just agree? But I'm going to give you some pointers, after which perhaps you will be more inclined to agree that yes, in a way, the world can be called an imagination. Because this is one of Advait Vedant's basic principles. The Shastras tell us that the whole world is my imagination. Now the doubt comes into our minds. Why would I imagine such a miserable world where I'm having to go through endless amount of trouble? The answer is, I alone have not imagined this world. It is the combined imagination of all of us. You understand? The combined imagination. Sometimes my imagination has the upper hand. Sometimes someone else's imagination. They keep on countering each other and cancelling one by the other. Thus, misery takes birth. देखो, एक बार एक कुम्हार था, वो अपनी बेटी को विजिट करने जा रहा था. तो उसके मन में आया कि अभी अभी मैंने पूरा अपना घरौंदा भरा है बर्तनों से और मैं भट्टी जला करके जा रहा हूं. हाँ, तो भगवान तू बारिश मत करना. ठीक है. अब वो जो किसान था वो भी जा रहा था कहीं बाहर, तो वो क्या बोल रहा है भगवान को कि भगवान बरसा देना क्योंकि मैंने अभी बीज डाले हैं. तो भगवान क्या करे बताइए? तो कभी किसान की बात मानता है भगवान और कभी कुम्हार की बात मानता है. तो उसमें गलत क्या है? तो जब कुम्हार की बात मानेगा तो किसान सफर करेगा और जब किसान की बात मानेगा तो कुम्हार सफर करेगा. है कि नहीं? कभी इसकी बात हो जाती है, कभी उसकी बात हो जाती है. यस, यू अंडरस्टूड दिस, है ना? Thus misery takes birth. Now I will tell you a very interesting quotation by a foreigner, a Western mind. What he has written will surprise you. He says that the world is, we believe that the world is also God's dream. Now this Chesterton has written, how much happier we all would be if a higher God were to take a hammer and crush our little dreams. See, there is also in Advait Vedant, we believe that this creation has happened partly by God assisting the creation and partly by us contributing by our desires as to
why the world has developed the way it is. It is a very dynamic world. Why is it a dynamic world? 7 बिलियन लोग एक साथ में इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो डायनामिक होएगा कि नहीं? आज शशि जी कुछ अपना लेकर के बैठी हैं, कल रॉक्साना कुछ करना चाह रही है, परसों ममता ने कुछ छेड़ा हुआ है, तो हर एक का कुछ ना कुछ चलता रहता है. So in Advait, we believe that this creation is neither mine nor God's, but God along with us has created this world. Now, what has Chesterton said? That how much happier we all would be if a higher God were to take a hammer and crush our little dreams. Why do we all dream small dreams? मैं आपको बताती हूँ. पहले वो बताने के पहले मैं ये कह देती हूँ कि but the higher God does no such thing because he wants us to learn by our own mistakes, like how we would like our children to learn the lessons of life by making their own mistakes. तो गॉड ज्यादा इंटरफियर नहीं करता इन द डे टू डे वर्किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सेप्ट दैट उसने सब कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रखा है कि भाई आग में हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा, पानी ज्यादा हो जाएगा तो तुम बह जाओगे, हाई प्रेशर होएगा तो हवाएं बाहर की तरफ बहेंगी, लो प्रेशर होएगा तो बाहर से हवाएं अंदर आ जाएंगी. यू अंडरस्टैंड? इस तरह के सारे नियम बना रखे हैं. तो ये सारे नियम कभी भी हमको हर्ट करने के लिए नहीं होते थे, ये हमारे हेल्प के लिए बने हुए हैं. जैसे कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो, एकदम गर्म हो गया है, तो हमारे अंदर से कॉन्डेंसेशन शुरू हो जाएगा, तो हमको बिल्ट इन एयर कंडीशन भगवान ने दे रखा है. अगर वो नहीं होता तो क्या होता? हमारी बॉडी का तापमान इतना बढ़ जाता कि हम लोग वहीं का वहीं मर जाते, शूट अप कर जाता ना. लेकिन हमारे अंदर कॉन्डेंसेशन की एबिलिटी वो किसने दी है? वो भगवान ने दी है. तो भगवान का सारा जो क्रिएशन है वो कभी हमको हर्ट करने के लिए नहीं है. लेकिन हमने जो इसके अंदर, अब जैसे हमने इतना ज्यादा ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया और इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर को दूषित किया, तो उसका तो अपना रिजल्ट होएगा कि नहीं. तो हमारे और भगवान के मदद से ये क्रिएशन चल रही है. ठीक है? तो अब मैं आपको ये बताती हूं कि जो चेस्टरटन ने कहा कि he would crush, why doesn't he crush our small dreams? पहला आंसर कि वो नहीं हमारे काम में इंटरफियर करता है, वो चाहता है कि हम अपनी ही गलतियों से सीखें, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद की गलतियों से सीखें. ठीक है? Now I'm going to tell you why we think small. देखिए, suppose you are a waiter. तो एज अ वेटर व्हाट वुड यू थिंक कि भाई एक दिन मेरा रेस्टोरेंट हो जाए. इज दैट अ वेरी बिग ड्रीम? बट फ्रॉम द वेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी बिग ड्रीम. बट लुकिंग एट द वाइडर पर्सपेक्टिव इट इज अ वेरी स्मॉल ड्रीम. अ सेल्समैन may dream about one day having a shop of his own. मुझे ये समझ नहीं आया क्या कि वेटर अगर सोचता है कि मेरा रेस्टोरेंट हो, तो it is a small dream, it's a big dream. It is a big dream from a person's point of view. पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा. लेकिन पूरा बड़ा शिव जैसे बर्ड्स आई व्यू देखें. अब मैं आपको उसको समझाती हूँ. What is the highest dream we all can have? What is the highest dream we can entertain? To become self-realized. There is no competition for us in that.
और कोई भी छोटी मोटी ड्रीम करें तो 10 लोग जो रेस्टोरेंट्स खोलते हैं आपस में उनका कंपटीशन होता है, और हो सकता है कि 2-4 का बिजनेस फेल हो जाए और 2-4 का सक्सेसफुल हो जाए, होता है कि नहीं? लेकिन जो हाईएस्ट ड्रीम भगवान ने हम लोगों के लिए दे रखा है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो क्या है? टू बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। और उसमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं होता है। हम लोग सब साइमल्टेनियसली सेल्फ रियलाइज्ड हो सकते हैं। क्यों शशि जी? ठीक है? हाँ, बट वी डू नॉट एंटरटेन विजन। हम लोग ये वाला विजन अपना एंटरटेन नहीं करते। हम लोग ये तो कभी कंसिडर ही नहीं करते। We are enamored by the pleasures of the world, the riches and the comfort that life can offer. Okay, so now this point is over and I am going to present a new point of view. Now see, whatever is there in this world is someone's imagination. Now देखिए, अब हम लोग किस टॉपिक पर हैं? That the world is an imagination. तो अब मैं आपसे क्या कह रही हूं, जो कुछ भी यहाँ पर लोग अपना अपना इमेजिनेशन करते हैं उसी के हिसाब से ये वर्ल्ड बनता है। जैसे हम लोग पहले जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि हम झोपड़पट्टी में रहेंगे, झोपड़ियों में रहेंगे, है ना? वो लोग तो जंगलों में रहते थे, वो लोग तो पेड़ों की शाखाओं में रहते थे। तो उनके लिए एक बड़ी छलांग हो गई कि उन्होंने सोचा कि हम लोग एक थैच्ड हट बना सकते हैं। ये उनके लिए बड़ी छलांग हो गई। तो उनकी इमेजिनेशन के हिसाब से उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई या केव्स में जाकर के रहने लगे। और अब किसी की इमेजिनेशन हुई कि 100 स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है। पहले इमेजिनेशन हुई, उसके बाद बिल्डिंग भी बननी शुरू हो गई। तो पहले क्या आया? विजन या इमेजिनेशन। तो इस तरह से भी ये कहा जा सकता है कि द वर्ल्ड इज आवर इमेजिनेशन। हर चीज हमारी इमेजिनेशन से होती है, हर चीज हमारे माइंड में पहले आती है। अब मैं आपको और भी चौंकाने वाली बात बताती हूं। देखिए, ये जो बात है, ये हम लोगों ने 1-2 सेशंस के पहले बहुत अच्छी तरह से करी थी। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? तो बाहर हमको सीनरी दिखाई पड़ रहा है, तो क्या वो सीनरी हमारी आंख के अंदर आता है? एक पेड़ दिख रहा है जो कि बहुत खूबसूरत फूलों से लदा हुआ है और मैं उसकी तरफ आकृष्ट हो रही हूं। क्या वो पेड़ मेरी आंख के अंदर घुसता है? क्या जाता है आंख के अंदर? नहीं घुसता। क्या जाता है आंख के अंदर? केवल द रिफ्लेक्शन, द लाइट विच वॉज फॉलिंग ऑन द ट्री, वो बाउंस बैक करती है, वो आंख में कुछ पैदा करती है। जो आंख में इमेज दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है, वो कुछ सिग्नल्स भेजती है ब्रेन को। तो हम बाहर का सारा सीन कहाँ देख रहे हैं? अपने माइंड के अंदर देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हम अपने ही माइंड के अंदर देख रहे हैं। स्थूल ऑब्जेक्ट्स को नलिफाई करके हम उसको ऐसे देखें कि ये सब मेंटल वो है। तो फिर ड्रीम ही हो गया ना। तो इस तरह से ड्रीम हो गया, इमेजिनेशन हो गया, माइंड का एक एस्पेक्ट हो गया, माइंड का एक एस्पेक्ट। तो इमेजिनेशन है ना माइंड का एस्पेक्ट। अब देखिए, दिस इज ट्रू ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स। खाली आंख नहीं, कान जो कुछ सुनता है वो कान से सिग्नल ब्रेन में किसी तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करती है। ब्रेन उसको किस हिसाब से इंटरप्रेट करती है? जो हमारी प्री कंडीशनिंग हुई है उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करती है।
This is true of all sense organs. Let us take the example of the sound being taken in through the ears. Now, suppose there is a loud Western music being played. Deafening sound, हाँ, इतने loud decibels में बजाते हैं. Now, now likelihood is that the elder generation will interpret it as so much deafening noise. For the youngsters, it may be the best music concert happening. Thus, you see how the world is interpreted in our minds as according to our preconditioning. Therefore, the philosophers, the seers, जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा कि rightly speaking, the world is our imagination. जो यंगस्टर्स को बहुत ही बढ़िया कॉन्सर्ट लगता है, जिसके लिए वो लोग लाख रुपए की टिकट भी खरीदने को तैयार है, वो एल्डर जनरेशन को डेफनिंग म्यूजिक लगता है. ठीक है कि नहीं? अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से हुआ कि नहीं? तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, जिसमें कि हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि हम डायरेक्टली नेगेट नहीं कर देंगे जब शास्त्रों में पढ़ेंगे कि द वर्ल्ड इज आवर इमेजिनेशन. अब दूसरा पॉइंट, दूसरा जो आज का प्रिंसिपल है वो है जगत. ओके, नाउ वी आर कंबाइनिंग द इमेजिनेशन एस्पेक्ट and we are going to make a new question over here. जगत कैसे सपना है? आपने अभी अभी शशि जी ने कहा we can call it सपना also. तो अब हम कहते ये इस बात पे आ गए कि जगत सपना कैसे है. ठीक है? Now consider one day of your life. Consider the 3 stages. हर रोज हम लोग थोड़ी देर के लिए जगते हैं. समझे कि 12 घंटा या समझे कि 16-17 घंटा हम लोग जगते हैं. उसके बाद हम एक और स्टेज में चले जाते हैं जो कि ड्रीम स्टेट है, और एक तीसरी स्टेज में चले जाते हैं जो कि डीप स्लीप स्टेट है. तो हर बार हम लोग 3 स्टेट से गुजरते ही हैं. The world which you think is real happens or is felt by you only in the waking stage. इसको आप सच कब मानते हैं? खाली जब आप जग रहे हैं. और आप ही खुद जिस स्टेज को आप सच मानते हैं उसको आप ड्रीम के समय और डीप स्लीप के समय नेगेट करके बैठे हुए हैं. ड्रीम के समय में आपने क्या किया? आपने एक अपना नया जगत बना लिया, उसमें एक नया आप भी बन गए, नए एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं. और डीप स्लीप स्टेट में तो आप सब कुछ भूल करके बैठे हुए हैं. यू पर्पसली want to get into a deep sleep state where जैसे कि एक माँ है, उसको नया नया अभी बच्चा हुआ है, उसके लिए अपने बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस जीवन में कुछ नहीं है. वो भी क्या करेगी? वो भी अपने बच्चे को भुला देगी उस पीरियड के लिए जब वो डीप स्लीप स्टेट में है. तो जिसके लिए वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, उस छोटे से बच्चे के लिए जो उसकी नई जिंदगी है, उसको वो भूलने को तैयार होती है कि नहीं? बताइए. अगर वो नहीं भूलेगी तो 2-4 दिन में ही उसकी एनर्जी इतनी लो हो जाएगी कि वो वैसे ही कुछ भी यूजफुल अपने बच्चे के लिए नहीं हो पाएगी. इन ड्रीम स्टेट यू मेक a new totally new world of your own, unconnected with the waking state. You have also created a different image of your own self. This is, आप लोग ये सब चीज आसानी से समझ गए क्योंकि आप लोग हर रोज इस चीज के थ्रू गुजरते हैं.
The difficulty arises when mystics and philosophers call the world a dream. It is a dream because each one of us interprets life's experience in his own way. Suppose you have a boss who has taken a dislike to you. Now, whatever wrong happens in the office, somehow he makes you responsible for it and makes your life a living hell. The same boss is good to others and places people on high pedestals and publicly appreciates someone or the other. For that person who's being appreciated, the boss is a wonderful person. The same boss, therefore, is a wonderful person, and in your eyes, he is the pits. Thus, in this world, nothing is intrinsically good or bad, but what we make it out. Therefore, it is a dream. Now, there is another point which I'm going to give you. This world is extremely changeable. आप अपने आप को देखिए. Today you are in love with a person. You just adore everything that he does. Even if he is drinking spoon with a fork, you'll say, oh, how cute he is. He's trying to drink the soup with a fork. उसकी हर बात आपको अच्छी लगे. Tomorrow, you have a quarrel with him. From I love you, you change to I hate you, I hate you. From I want to marry you, it becomes I want to divorce you, I will divorce you. Now, don't you think you are a very reasonable person? If a very reasonable person like you can be so changeable, then don't you think this world should be called a dream? When you can change so much, how can you expect the other to be steady? But you want that the other should 100% appreciate every single act that you do. देखिए हम लोग का कितना डिमांड रहता है. भाई मेरे जो घर वाले हैं ना, उनको मेरे हर एक्शंस को समझना चाहिए. हर एक्शन को 100% ऑफ द टाइम दे शुड अप्रिशिएट मी. ऐसा हम चाहते हैं. The other person has to be steady. Now, see, your husband is so loving today. Tomorrow, he gives you a big scolding. In other words, highly unpredictable. Therefore, it is a dream. Now, another point. We call it Jagat. Jagat. In Sanskrit, all the words are highly deep and spring from an inner understanding of reality. Ja. Ja किसके लिए है? जन्म. Ja पैदा हुआ. Gat past हो गया. It slipped out. जो पैदा हुआ है और आज न्यू बॉर्न है, वो अब अपने ही ग्रेव की तरफ मूव कर रहा है. Life is a dash between the womb and the tomb. लिख लीजिए, ये तो अच्छा सा स्टेटमेंट है, ये तो लिख लीजिए. Life is a dash between the womb and the tomb. एपिटाफ पर, ग्रेव के ऊपर क्या लिखते हैं कि भाई फलाने साल में पैदा हुआ, डैश फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर. जिस साल पैदा हुआ और जिस साल मरा, है ना? Therefore, Jagat is rooted in impermanency. Impermanent है कि नहीं है? Like a dream. कल, आज और कल. ठीक है? कल. Is the past in your hands? No. Kal, tomorrow. Is that in your hands? No. What is in your hand? आज. अभी जिसका जन्म हुआ है. आज का पल.
आज का पल is in our hands. But how long does a pal remain? A moment is a moment. The next moment it has become the past. तो आप पकड़ेंगे किसको? जैसे हम कहते हैं, हमको लगता है कि नदी जो है वो बह रही है, कितने दिन से नदी बह रही है, लेकिन दिस इज एन इल्यूजन, क्योंकि उसका पानी हर समय बदल रहा है. वो पानी वो वहां पर रहता ही नहीं है, वो बदलता ही जाता है. इसलिए द वर्ल्ड इज अ ड्रीम. एक दीपक की ज्योत वो जल रही है, तो इस समय जिस घी की वजह से वो दीपक जला, वो घी तो जल गया. तो अब जो लौ आपको दिख रही है वो नई लौ है. हर पल लौ नई हो रही है, पहले वाली लौ खत्म हो रही है. समझे आप? इसलिए द वर्ल्ड इज एवर इसलिए द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग. नाउ सो इट बॉइल्स डाउन टू ओनली द प्रेजेंट मोमेंट. ये बात हो गई. बी केयरफुल हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ in the present moment on the functional plane, because it can have far-reaching consequences. Now, I will tell you how you must live your life on this functional plane. Take every step very cautiously, but know that all this is a passing show with not much bearing on the reality that you are. In spite of that, you have to take the steps very cautiously. Don't become negligent. Is that clear? Keep yourself anchored in your universal consciousness and take decisions thus. Then the ups and downs will matter less. है ना? अपनी हार में फिलोसॉफिकल रहिए. दूसरे की जीत में भी तुम्हारी खुशी हो, रिफ्लेक्ट करे. दूसरे की जीत भी तुम्हारी खुशी का कारण हो. ये नहीं है कि दूसरा जीत गया तो आई हैव अ लॉन्ग फेस. ऐसा नहीं करिए, तभी आप इस जीवन में खुश रह सकते हैं. तीसरी बात, अपनी नजर उस पर रखो जो इस चेंजेबल संसार में परमानेंट है. चेंजेबल को भी फाउंडेशन की जरूरत है कि नहीं है? कोई भी चीज को फाउंडेशन की जरूरत है कि नहीं है? जितनी ऊंची आपकी बिल्डिंग बनती है, समझिए आपको 100 फुट की बिल्डिंग, 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है, स्काई स्क्रेपर. हाँ, तो उसकी फाउंडेशन कितनी बड़ी लेनी पड़ेगी? 30 फ्लोर्स जितनी आपको उसकी फाउंडेशन लेनी पड़ेगी, जो कि स्टिल रहेगी. उसके ऊपर आपकी 100 फ्लोर की बिल्डिंग आती है. तो जो ये चेंजेबल संसार है, इसकी फाउंडेशन एक स्टिल, ट्रैंक्विल, ऑल परवेडिंग फील्ड है. बिकम द स्टिल पॉइंट ऑफ द मूविंग वर्ल्ड. तभी आप परमानेंट खुशी को हासिल कर सकते हैं. परम से मिला है, परम में घुला है. ये शरीर हमको कहां से मिला है? परम से मिला है. सोर्स क्या है? वो परम हमारा सोर्स है. परम. एक कभी आपने एक कुछ बोला था जो मैं लिखने लगी तो भूल गई अभी, क्या कहा था आपने? बिकम द स्टिल पॉइंट ऑफ द मूविंग वर्ल्ड. यस, ये एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है. परम से मिला है, परम में घुला है. इट इज ऑलरेडी बिल्कुल उसके अंदर ही घुला पड़ा है, उस डिविनिटी के अंदर. परमात्मा से अब तो दूर ही नहीं. ये अंडरस्टैंड करना.
पंकज पंकजा पंखुड़ी पंख पा, ऊंची उड़ाने भी थमती नहीं, परम से मिला है परम में घुला है, परमात्मा से अब तो दूरी नहीं। अब हमारा आज का तीसरा प्रिंसिपल है मन। ठीक है, ऐसे तो मन शास्त्रों में 64 फैसेट्स में डिवाइडेड है, उसके 64 फंक्शंस होते हैं। पर एक अलग दृष्टि से देखा जाए, आम आदमियों के लिए मन कैसा होता है और मन की स्थितियां क्या होती, तो मैं अभी आपको वो 64 में नहीं ले जाती, मैं फंक्शनल ब्रेन की बात कर रही। तो क्या होता है कि वीकेंड, पहला जो इसकी स्टेट हो सकती है, वी कैन डिस्कनेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एक सन्यासी होता है, क्यों रिद्धि? एक सन्यासी क्या करता है, सब घर बार छोड़ छाड़ करके वो सन्यास ले लेता है। ही इज डिस्कनेक्टेड विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। घर बार छोड़ देता है ना, तो डिस्कनेक्शन हो जाता है ना उसका। दूसरा, so this is one state. Second state, we are living in grahasth. This is the second state, but objects do not bring about an internal change in us. That means indifference towards worldly possessions. ये जैसे कि एक साधक की स्टेट हो गई, गृहस्थ में रहते हुए वो साधक है और उसने अपने आप को इनडिफरेंट बना लिया है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, समझ गए ना? अभी हमारी आंख दूसरों की ज्वेलरी पर पड़ती नहीं है। एक सेकंड के लिए कह दिया हाँ ठीक है, नीता अंबानी के पन्ने जो थे ऊपर से नीचे पन्नों की लाइन ऐसी थी, बस ठीक है, हमारी खेच नहीं है उधर, वो थी उसकी, शी इज हैप्पी विद दैट। कोई महात्मा कहेगा कि वो इतना बड़े हार का बोझ उठा रही है, शी इज अ गधा, उसको गधा बोल देगा। गधा बोझ उठाता है कि नहीं? हम तो बिना ज्वेलरी के एकदम फ्रेश और हल्के रहेंगे, और उसने अपने आप को गधा बना रखा है, तो क्या कर सकते हैं इसका? उसकी वो लायकी है, उसको उसकी तरह की जिंदगी मुबारक है, वो बहुत अच्छा कर रही है, वो बहुत तरह से बहुत लोगों का उपकार कर रही है। उसने जो ज्वेलरी की इंडस्ट्री है उसको बुझने से रोक दिया। आप सोचिए, उसकी शादी में पहनने के लिए और लोगों ने भी इतनी ज्वेलरी बना दी, तो ज्वेलरी का मार्केट बरकरार रहा कि नहीं उसकी वजह से। तो हमको कितना उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। तो हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। तो एक गृहस्थ जो है, अगर वो साधक बन चुका है तो वो अपने आप को वो इंप्रेशंस अंदर लेता है, लेकिन उससे उसके मन में कोई ऑल्टरेशन नहीं आता। ये हो गई दूसरी स्टेट। अब तीसरी स्टेट क्या है? वो है पामर की अवस्था। वो क्या करेगा? he is taking the impressions and the impressions are impacting him so much so that those impacts overtake his life, और कुछ वो भूल जाता है। अब वो भाग रहा है उनके पीछे, और ऐसे 1-2 दिन, 10-20 साल, 25 साल नहीं, 25 लाख योनियों नहीं, 84 लाख योनियों से वो हम यही करते आ रहे हैं। Most of us exist in the third state. In that state, when the object has excited us to the extent that we want it and the circumstances are not favorable,
It gives rise to anger. So we are taking in impressions and are getting impacted by them so much so that they overtake us. When the circumstances are not favorable and we cannot fulfill the desire that has arisen, then what happens? It gives rise to anger. And when anger overtakes us, then first, hell is let loose in our own bodies. हमारा ही शरीर में पॉइजन और इतनी हीट पैदा हो जाती है जो हमको बेहिसाब नुकसान पहुंचाती है. देन ऑल अराउंड अस ऑल्सो सारा एटमॉस्फेयर दूषित हो जाता है. एंड वी रिमेन इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. जन्म मरण के चक्र में हम पड़े ही रहते हैं. ये सब हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? मन हमको क्या क्या गुलंट खिलाता है. अब देखिए, ये तो हो गई 3 स्थितियां. हाँ, सन्यासी, गृहस्थ और पामर की. अब रहा चौथी स्थिति. मन की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि वो औरों की देखा देखी करता है. जब तक वह यह करता रहेगा तब तक वह कभी भी सुखी नहीं होगा. एक और स्टेट है जब मन हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस और प्रिंसिपल्स जो हमने बना रखे हैं उसके ऊपर ही अपनी सारी जिंदगी को बेस करता है. देखिए, मैं जब अपने पानी के काम के लिए जाती हूँ ना, तो गांव गांव में जाकर के मीटिंग लेती हूँ. तो मैं क्या कहती हूँ कि भाई तुम लोग अगर डाउरी मतलब दहेज की प्रथा छोड़ने को तैयार हो, अगर मृत्यु भोज छोड़ने को तैयार हो, अगर अल्कोहल और गुटखा छोड़ोगे, तभी मैं तुम्हारे गांव में चेक डैम बनाऊं. सपोज पहले मीटिंग हो गई, सब लोगों ने कहा हाँ हाँ हमको चेक डैम चाहिए. मैंने कहा ठीक है, हम आपके लिए चेक डैम बना देते हैं, लेकिन आपको पहले ये सब चीज गिव अप करनी है. अगर मैं पहले उनसे गिव अप नहीं कराऊंगी तो क्या होगा? वो लोग प्रॉस्परस हो जाएंगे और अभी भी उनके अंदर शराब पीने की आदत है. तो क्या करेंगे? वो सारा अपना पैसा, न्यूली अर्न्ड पैसा शराब में वो झोंक देंगे. तो उनकी औरतें कहेंगी कि अरे पहले ही हम सुखी थे, पानी नहीं था, उसकी तकलीफ थी, लेकिन कम से कम मर्द आकर के हमको पीटता तो नहीं था, कम से कम मर्द आकर के अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर के हमारे ऊपर अत्याचार तो नहीं करता था. सोचिए आप. इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले उनसे कहती हूँ तुम ये गिव अप करने का वादा करो, तब तुम्हारे यहाँ चेक डैम बनेगा. क्योंकि पैसा हो और आदतें नहीं सुधरे तब उसका कोई फायदा नहीं. मृत्यु भोज इज अ नोशन. नोशन में क्या होता है कि भाई जब किसी की मौत हो जाए, किसी बड़े बूढ़े की, तो हम क्या करेंगे? 3 गांव को बुला करके हम लोग खाना खिलाएंगे, उसमें अपनी जमीन भी गिरवी रख देंगे. ये क्या है? हमारे पूर्वजों को स्वर्ग मिल जाएगा, इतने लोगों का हम. अरे भाई, इसलिए मैं छुड़वाती हूं. तो कई बार ये मन प्री कंसीव नोशंस पकड़ के बैठता है और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को उलझा लेता है. समझ गए आप लोग? तो मैं फिर क्या करती हूँ, उन लोगों से क्या कहती हूँ मालूम? मैं कहती हूँ कि देखो, कोई भी ऑस्पिशियस दिन, कोई भी बड़े त्योहार के दिन तुम लोग 3-4 गांव की मीटिंग कर लो और वहां पर एक साथ में मृत्यु भोज छोड़ने का निर्णय ले लो. अकेला एक इंसान इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता. सम्मिलित रूप में जब हम ये कदम उठाते हैं तो हमको ताकत आ जाती. समझ गए आप? तो हर एक चीज का हम लोग एक ना एक उसका सॉल्यूशन निकाल करके उनके लिए चेक डैम का काम करते हैं. हाँ, तो
कहने का मतलब है कि हमको सीख लेना है कि हमारा मन निर्णायक हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो मन को स्ट्रांग हम बनाएं और हम उसको डिसाइसिव माइंड बनाएं, निर्णायक माइंड। डिसाइसिव माइंड के लिए इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द है निर्णायक। हाँ, नाउ एक मन की क्वेस्ट क्या है? नाउ द क्वेस्ट ऑफ लाइफ अपीयर्स टू बी हैप्पीनेस। इफ वी आर नॉट हैप्पी, वी थिंक एक्सटर्नल कॉजेस के कारण मैं हैप्पी नहीं हूं। ये फलाना जो अपने दुख का कारण किसी और को हम मानते हैं, मेरी सास मेरे लिए ऐसा करती है, मेरा हस्बैंड ये कर रहा है, तो हम भीतर देखना बंद कर दिए हैं और हम बाहर उंगली उठाते हैं कि इसकी वजह से मैं नाखुश हूं। लुक विद इन, इसका इलाज क्या है? मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूं, मैं डायग्नोसिस बता रही हूं और फिर उसका इलाज बता रही हूं। लुक विद इन, what is within my mind which is making me unhappy? Then see what is the cause of my joys and happiness. ये भी साथ में देखिए कि मेरे joys का क्या कारण है। अब यहां गलती कहां होती है? अब हम जब अपनी खुशियां देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? My deal went through, that is why I'm happy. मेरी डील अच्छी हो गई इसलिए मैं हैप्पी हूं। हाँ, और फिर मैं कहूंगी कि माई स्टॉक्स आर गोइंग अप, दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी। सो वी थिंक दैट आई एम होल्डिंग दिस बुके ऑफ फ्लावर्स, अ गुड हाउस, अ गुड फैमिली, अ गुड बिजनेस, सो आई एम हैप्पी। तो इस प्रकार डंडियों को तोड़ तोड़कर फूल इकट्ठे किए हैं और इनसे मेरी प्रसन्नता का गुलदस्ता बना है। पर जब हम अपने अंदर की खुशी पाते हैं तो वो गुलदस्ता नहीं होता, वो एक पेड़ हो जाता है जिसकी जड़ें खुद हमारे अंदर होती हैं। अभी तक क्या था? हमारे पास पानी का स्रोत नहीं था, हमने घड़े भर भर के रखे हुए थे, कोई बोरिंग नहीं थी जो अंदर से आनंद फूटता रहे और हम उसको सबके साथ शेयर करते रहे। जब तक ये सोचने का तरीका नहीं बदला तब तक हम अधूरे रह जाएंगे और अधूरे मर भी जाएंगे, फिर नया जन्म। आप एक सुख का नाम लो जो आपका अपना है। शशि जी, I want to ask you, name one sukh which is from within. What is your sukh? When I meditate, that is the most beautiful thing for me. That is the most beautiful. वो आपका अपना सुख है. It is not dependent on anybody. Then I will also name a few more. The joy of just being. The joy, शशि जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए. The joy of just being. आपका होना ही आपके लिए आनंद का कारण है. The joy of just being drowned by the अनहद नाद, जो हमेशा बचता है अनहद नाद, जो अगर हम अपने आप को इंटरनलाइज करें तो हमारे कानों में अपने आप सुनने लगेगा. वो जब कैच हो जाता है तो उसका भी आनंद हमारा अपना है, बाहरी नहीं है. द जॉय ऑफ हेल्थफुलनेस. सपोज कि मैं हेल्दी हूं तो वो जो हेल्थ का जॉय है वो भी बाहरी चीजों पर कम डिपेंडेंट है ऑन द बॉडी, बट
और लोगों से अफेक्टेड नहीं है। द जॉय ऑफ रिकवरी, सपोज कि मैं बीमार हूं, अब बीमार हो गई हूं, लेकिन आज मैं फील कर रही हूं रिकवरी, उसका एक जॉय होता है कि नहीं? वो भी मेरा अपना जॉय है। द जॉय ऑफ सीइंग अ न्यू ब्लेड ऑफ ग्रास, अभी बरसात के दिन वो जो सूखी जमीन पड़ी हुई थी, उसमें से एक हरिया धानी कलर की ग्रास का निकल रहा है ब्लेड, उसका जॉय। अ न्यू लीफ, अ न्यू बड in the plants in your own house. The last four are on the functional plane, but here you have now become aware that joy is within you. So there is joy in these small, trivial, inconsequential things. तुम यहां पर साइलेंट हो गए हो, तो छोटी छोटी चीजों का आनंद तुमको लेना आ गया है। पहले तुम उसको देखते ही नहीं थे, पहले वो चीजें तुमको आनंद दे नहीं पाती थी। अब तुमको ये समझ में आने लगा है कि वो जो मेरे अंदर अमृत का कुंड है, उसके अंदर ये स्पर्ट्स ऑफ जॉय निकल रहे हैं, जो कि मैं एंजॉय कर सकी। एक और बात है, सुखी मन हर तरह के ऑब्स्टिकल्स क्रॉस कर लेता है। लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, अगर हम अंदर से सुखी रहना सीख लें, जैसे अगर हमारे चेहरे पर एक मुस्कान है, तो हमको दुखी होने के पहले उस मुस्कान को मिटाना पड़ता है। अगर हम मुस्कुराते रहें, तो जो दुख आया है उसकी भी मात्रा या इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। मैं नहीं कह रही हूं कि दुख के समय आप मुस्कुराएं, लेकिन अंदर की प्रसन्नता को छोड़े मत। सुखी मन हर तरह के ऑब्स्टिकल्स क्रॉस कर लेता है। रामायण कहती है, निज सुख बिन मन लहई अस्थिरा, वो हमेशा मन अस्थिर रहेगा, वो हिलता डुलता ही रहेगा, वो स्टेडी नहीं हो पाएगा। और जो सुखी हो गया है मन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सुख में स्थिर हो जाता है। जब तक बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट रहेगा, तब तक बाहर ही खोजता रहेगा। बाहर का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। देखिए, अगर हम बाहरी विद्या, जगत की विद्या सीखने को चले, तो एक एक फील्ड में इतना सीखना पड़ेगा, बाहरी ज्ञान में कभी भी हम पूर्ण नहीं हो सकते। मेडिकल फील्ड में अगर हम सर्जरी सीखने को चले, तो सर्जरी के बारे में कितना सीख रहे हैं। अगर हम अपने पैर का स्पेशलाइजेशन करें कि भाई मैं पैर का स्पेशलिस्ट बन जाता, तो आजकल स्पेशलाइजेशन किस हद तक पहुंच गया है कि भाई मैं लेफ्ट फुट का, मैं फुट का डॉक्टर हूं। अब क्या बोलते हैं, मैं खाली लेफ्ट फुट का डॉक्टर हूं, राइट फुट के लिए तुम दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि वो विद्या इतनी ज्यादा कलॉसल है कि उसको हम पूरी तरह से जान नहीं सकते। पर एक और तरीका है, जब हम ये जान लेते हैं कि ये जगत नाशवंत है, जगत वास्तविक नहीं है, यह एक सपना है। देयर इज नो इंट्रिंसिक ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, कि भाई ये म्यूजिक अच्छा है। आज हम लोग क्लासिकल म्यूजिक सुनने जाएंगे, तो यंगस्टर्स क्या करेंगे, अपने कान बंद कर लेंगे, हमसे तो नहीं सुना जा रहा। तो देयर इज नो intrinsic truth in anything, it is only by comparison. इसको सत्य मानना ही दुख है। जो जगत को सच्चा मानते हैं वे ही रो रहे हैं। जन्म सच्चा है तो मौत सच्ची है, तो रोना सच्चा है।
यह जान लो कि एक सत्य है ब्रह्म, परम आत्मा। केवल नाम नहीं जानना है, उसकी अनुभूति होना है। इन अदर वर्ड्स, इसको अगर हम बदल के कहें, जो सत्य है वही परम आत्मा है। जो सदा नहीं रहता है वह सत्य नहीं है, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, वो सत्य है जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता। अभी देखिए, जिनको हमने अपना इष्ट माना हुआ है, भगवान राम है, कृष्ण है, शिव है, या हमारे गुरु हैं, अगर हमने किसी भी चीज जो कि हम देख सकते हैं उसको सत्य माना है, तो हमको साइकोलॉजिकल बहुत सी बेनिफिट्स होंगे। हमको सुरक्षा मिलेगी कि भाई गुरु है मेरे को लुक आफ्टर करने के लिए, या भगवान मेरा योग क्षेम का को धार करके बैठे हुए हैं। पर गुरु को भी भगवान देखना ज्ञान नहीं है, उसको दिया है हमारे शास्त्रों में नाम भक्ति का। माता पिता को पूज्य मानना हमारा धर्म है, गुरु को हमारा इष्ट मानना हमारी भक्ति है। इसका बहुत लाभ है, पर यह ज्ञान नहीं है। ये सब साधन है, पर उस शांति में टिकना जिसमें राम और कृष्ण या गुरुदेव टिके हुए हैं, जो अपना स्वभाव है, वही ब्रह्म का भी स्वभाव है, सच्चित आनंद। Realize the eternal, serene, tranquil luminosity. लिख लीजिए ये लाइन। Realize the eternal, serene, tranquil luminosity, ever burning light, which is through which we become aware of all our experiences. जिसकी वजह से हमारे सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक लाइट है कि नहीं? वो लाइट दिखती नहीं है एज लाइट, बट इट इज द लाइट ऑफ लाइट्स which you are. Where is that light of lights? It is within you. So now we have completed our session of Yog Vashisht.